प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। Question and answer session. When you want to ask a question, raise your hand. Wait for your chance to be called to put your question. I will direct the micer to come to you. When it's your turn, introduce yourself and your organization, and then ask your question. I request you to be brief and ask only one question at a time. Please keep your mobiles on the silent mode. Sir, the floor is open. Thank you, Mr. Narayanan. Good afternoon, friends. My colleague Shri Gyanesh Kumar ji, Honorable Election Commissioner on my right, and Shri Sukhveer Singh ji Sandhu on my left, senior officials on the dais, all the friends from media, and all others who are connected to us through social media. A very warm welcome to all of you. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सबका स्वागत है. Last we had met was on 16th of March. And now that was beginning of the poll, and now tomorrow is the counting, so close of the poll. So on a lighter vein, on social media now you will see various memes with the taglines that perhaps Lapata gentlemen are back. So we were never out, we were always here. We chose to interact with you through our press notes. This was first time that we have issued close to 100 press notes, which has never been done ever. Advisories and all put together is total 100. So we have been interacting from behind the scene. So today we thought we will come and talk to you about this incredible story of the general elections, and we'll also try and answer whatever had happened during these 7 phases, both positive, negative. So let's just go through this incredible journey of the 7 phases. How do we go about it is that what has been the magnitude, what has been the effort of all of us together. 4 M's की हमने बात की थी जब हम शुरू किए थे इलेक्शन, मसल, मीडिया, मिस इन्फॉर्मेशन. तो उन 4 M में MCC, उनमें क्या हुआ, कैसा रहा, आपको रिपोर्ट करेंगे. और काउंटिंग के बारे में जितनी बातें, उसकी प्रिपेयर्डनेस क्या है, उसके बारे में भी बात करेंगे. तो फ्रेंड्स, इट्स ए मिरेकल what had happened. We'll try and talk about it more, and I'm sure all of you have been writing about it. All of you have visited the ground also, seen the polling stations for yourself, and have been part of us. We have walked together whatever had happened in these last 3 months. Let's see what had happened. So the first major story, we have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. Let's see what happened next. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. You are all our voters. So we thank you all. We salute all our voters, all our women voters who have really come and voted in this election, including all of you. You have also voted. I know many of you. I personally know the experiences which you have had on the polling station. Let's see what happened next.
85 plus in PWD voters. We again salute them. We again salute them. It has also not happened ever. उनके घर घर जाके हमने वोट लिया और आपके भी घर में कहीं ना कहीं आसपास में किसी ना किसी बुजुर्ग ने वोट दिया होगा, जिसकी वजह से वो भी हमारे इसमें पार्टिसिपेट कर पाए. So these are the incredible stories on the positive note which we want to tell you. और जहां वुमेन का प्रश्न आया, मैंने पूछे वोटर्स दिखाए थे. हमने पूरे चुनाव में ये कोशिश की कि वुमेन डिग्निटी पे कोई भी वर्ड किसी के मुंह से पॉलिटिकल पर्सन के ना निकलने पाए. अगर निकल भी गया तो उसको हम इतनी स्ट्रांग नैरेटिव और इतना स्ट्रांग वर्डेड एडवाइजरी दी है. वी फील that in times to come the political parties would also learn, the candidates would also learn to not utter a undignified word against the women of our nation. This is what we have attempted to settle by giving advisories, and we hope that this is not only during elections in political parties, but the discourse against women would be generally respected and would be in a different tenor. Friends, होम वोटिंग में जिन लोगों ने हमारे साथ वोट दिया, ये हमारे लोकतंत्र के गणनायक हैं. आजादी के पहले का भारत इन्होंने देखा है और पिछले 70 सालों में इन्होंने देश की एक एक चीज में, तरक्की में और कार्य में भाग लिया है. इनको भी हम दिल से नमन करते हैं कि इतने दिल से इन्होंने हमारे इलेक्शंस में भाग लिया. और हमारा तजुर्बा ये कहता है कि जब हमने सबके घर में पर्ची बांटी कि आपको 12D भरना है, लेकिन मेजॉरिटी ने हमसे ये कहा कि हम बूथ पर आना चाहते हैं. वी वांट टू सेलिब्रेट, वी हैव बीन गोइंग टू द बूथ, वी वांट टू गो टू द बूथ, एंड दैट्स द स्पिरिट. और हम समझते हैं कि इससे आने वाले समय में यूथ भी इससे प्रेरणा लेंगे. सो जस्ट टू क्विकली शो यू हाउ मच ऑफ द वर्क वाज इन्वॉल्व इन दिस, जस्ट सी. We have told you about 1.5 crore polling and security personals, but there were around 68,000 monitoring teams. वो क्या कर रही थी ये भी मैं आगे बताऊंगा आपको. तो ये साइलेंट स्टोरी है जो बैकग्राउंड में चल रही थी और 2-3 महीने के नैरेटिव में ये कहीं आती ही नहीं है, खो जाती है. कहां खो जाती है? 135 स्पेशल ट्रेन चल रही थी जो फोर्सेस को इधर से उधर लेके जा रही थी. 4 लाख से ऊपर व्हीकल, 1692 से ऊपर की सॉर्टीज जो पोलिंग पार्टीज को अंदर में जंगल में पहाड़ पे लेके जा रही थी. अनसंग हीरोज ऑफ आवर इलेक्शंस, एंड इट्स ए मैटर ऑफ सीरियस रिसर्च एंड स्टडी कि ये लोग 1.5 करोड़ 50-60 लाख लोग जो बिल्कुल पोलिंग कराते हैं, ये अलग अलग डिपार्टमेंट से आते हैं, आपस में मिल जाते हैं और एक दिन पहले मिलते हैं और अचानक से एक जैसा 10-10.5 लाख बूथ पे एक इलेक्शन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेते हैं. हम लोग आपस में अगर 5 लोग किसी डिफरेंट ऑफिस से आके मिलके बैठे तो कितनी भी ट्रेनिंग कर लें तो आप समझ सकते हैं कि कितनी देर लगाएंगे एक काम को करने में. और ये पोलिंग स्टेशन पे जाके और किस तरह से जाते हैं ये हम बताएंगे. तो इनको भी हम सम्मान करना चाहते हैं बहुत अधिक. आपको दिखाता हूं कि इनकी वीडियो क्या करते हैं. ये कैन वी शो द वीडियो? Sound? Of our democracy. From organizing polling materials to strategizing logistics, ECI officials meticulously plan every step, overcoming any challenge to ensure that democracy flourishes. Where roads won't take us, we take to the skies. Because not even the sky is a limit in our quest to ensure that every last voter in this country is reached. We go the extra mile with a smile, so you don't have to, ensuring your vote is counted and your voice is heard in our democracy. Rain or shine, scaling mountains or navigating through last mile challenges, it's the bond of camaraderie that fuels our journey. The 15 million strong team works tirelessly to ensure that democracy thrives in every corner of the country. Let us honor the indomitable spirit of those who make this mammoth exercise possible. They make the festival of democracy, Chunav Ka Parv, possible, and the nation proud.
देश का गर्व। आपने देखा कहां कहां जाते हैं, कोई कंट्री का कोना नहीं है, कीचड़ में जाते हैं, पहाड़ पे चढ़ते हैं, पूरा बोझ लेके चढ़ते हैं, महिलाएं बच्चों को गोद में उठा के लेके आती हैं, ये मैं दिखाऊंगा। और जब निगेटिव नैरेटिव्स बनते हैं, जब इनके ऊपर में आरोप लगते हैं, तो सोच के देखिए कि इनके दिल को कितनी कठिनाई होती होगी। तारीफ तो अलग बात है, लेकिन हम इनकी तारीफ करना चाहते हैं, इनको ग्रेटिट्यूड देना चाहते हैं। नेक्स्ट। और इनके ऊपर में मैंने कुछ लिखा है, वो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। गुलशन की खूबसूरती फूलों से है, माली की बात कौन करता है। लोकतंत्र में जीत हार जरूरी है, मगर तुम्हारी बात कौन करता है। अभिनंदन हम करते हैं उन सभी का जिन्होंने भीषण गर्मी में, कहीं तूफान में, कहीं पहाड़ पर या किसी नाव में फर्ज अपना निभाया बगैर डिगमगाए, ताकि राष्ट्र का लोकतंत्र रहे मजबूत और तिरंगा लहराए। आप सबको हम सबकी तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन। ग्रेटिट्यूड्स। नेक्स्ट। फ्रेंड्स, now what had happened, which we promised during the 16th of March, this time we haven't had many repolls. This is an incredible story again of the meticulous work of the personnel, all those who are involved in the election. As against 540, there were only 39 repolls, and of these 39 also 25 are only in Arunachal and Manipur because of the far-flung distances. So 39 minus 25, just 14 repolls in rest of the countries, and in which 27 states have had no repolls. It has never happened like this. Next. This is another success story which all of you are aware. आप सब pictures देख चुके हैं। 58.58% ओवरऑल टर्नआउट एंड इन वैली 51.5। हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे, हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर, and we salute all of them. We changed the policy for Kashmiri migrants so that they can also vote, and their voting was also recorded. We abolished Form M, which was cumbersome. We also abolished for those who are staying outside the state the process of gazetted officers attestation and allowed self attestation. जितना easy कर सकते थे उतना किया, और 26 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बना के उनको भी वोट करना सिखाया। See next what is happening. These are the real success stories of the country. Manipur, हमने 94 स्पेशल पोलिंग स्टेशंस बनाए 10 डिस्ट्रिक्ट्स में, एंड डिस्पाइट द फॉल्ट लाइन्स विच एग्जिस्ट इन दैट स्टेट, हमारे साथ आके 71.96% इनर मणिपुर एंड 51.72 आउटर मणिपुर में इन पोलिंग स्टेशंस में वोटिंग हुई। पीपल आर ईगर एंड नो मेजर इंसिडेंट ऑफ वायलेंस। This is what is the success story of the election process which has happened. Let's see the inclusivity part, जो कि अक्सर शहरों की चमक धमक में ध्यान में नहीं आता। Persons with particularly vulnerable tribal groups, STs, participated in large number. We saw the festival of democracy really happening on those places. The champagnes voted for the first time. हमने पिक्चर्स दी हैं सबके लिए, हमारी वेबसाइट पे बहुत हाई रिजोल्यूशन फोटोज हैं, कभी कभी उनको देखिए, इस्तेमाल करिए, यू वुड रियली लव इट। कुछ विलेजेस और हेलमेट्स LW एरियाज में ऐसे थे जहां पहली बार वोटिंग हुई। इफ आई कैन नेम देम, 126 विलेजेस एंड 199। तो चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देख रहे थे। सभी मतदाताओं को शुक्रिया अदा करते हुए बता रहे हैं कि एक हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। एक छोटे से ब्रेक के लिए बिग ब्रेकिंग में रोक रहे हैं।
जामुन इंतजार है जब ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत का ताला खुलेगा और ये साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ जाएगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई। अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी ईवीएम में सफेद कागज नहीं है तो आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। ये तो रही ईवीएम की सुरक्षा की बात। आपको बता दें कि 4 जून यानी जिस दिन मतगणना है उस दिन के लिए भी बीजेपी ने खास तैयारी कर रखी है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, ईवीएम मशीन उम्मीदवारों और एजेंट के सामने ही खोले जाएं। फॉर्म 17C को देखें कि कितने वोट लिखे हैं और कितने वोट पड़े हैं। बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज को आईडी कार्ड बनाने के निर्देश दिए गए हैं। मतगणना केंद्रों पर गिनती शुरू होने से पहले ही पहुंचने को कहा गया है। मतगणना के आखिरी वक्त तक मतगणना केंद्रों पर ही डटे रहने का भी निर्देश दिया है। विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव, बीजेपी की तैयारी एक पेशेवर पार्टी की तरह होती है। यही कारण है कि ऐसी रणनीति जीत का झंडा बुलंद करने में अहम भूमिका निभाती है। नतीजों से पहले नेताओं ने लगाए चुनाव आयोग के चक्कर। इंडिया गठबंधन ने चुनाव आयोग को दिए सुझाव। बीजेपी ने उठाया मतगणना के प्रोटोकॉल का मुद्दा। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव के नतीजों का वक्त पास आ रहा है, नेताओं के दिलों की धड़कनें भी बढ़ती जा रही हैं। चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया गठबंधन, हर नेता मतगणना को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है और यही वजह है कि रविवार को इंडिया गठबंधन और बीजेपी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई में बीजेपी नेता चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। बीजेपी प्रतिनिधिमंडल ने चुनाव आयोग के सामने मतगणना में जुटे कर्मचारियों की ट्रेनिंग के साथ कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए। बीजेपी की मांग है कि चुनाव आयोग मतगणना के प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करे। मतगणना की प्रक्रिया में पूरी सेफ्टी और सुरक्षा बरती जाए। चुनाव प्रक्रिया को कमजोर करने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। वहीं इंडिया गठबंधन ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात कर मतगणना से जुड़ी तैयारी पर चर्चा की। साथ ही कांग्रेस पार्टी ने चुनाव आयोग के सामने बैलेट पेपर को पहले गिने जाने का मुद्दा भी उठाया। विपक्षी गठबंधन ने भी चुनाव आयोग के सामने कई मुद्दे उठाए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण है पोस्टल बैलेट के रिजल्ट ईवीएम से पहले जारी किए जाएं, काउंटिंग के दौरान पर्यवेक्षण नियमों को लागू कराएं, मतगणना की सीसीटीवी से मॉनिटरिंग हो और कंट्रोल यूनिट का वेरिफिकेशन हो। चुनाव नतीजों से पहले बीजेपी और विपक्षी गठबंधन के नेताओं ने चुनाव आयोग के सामने अपने अपने मुद्दे उठाए और चुनाव आयोग को अपनी आशंकाओं के बारे में भी बताया। फिलहाल अब 4 जून का इंतजार है जब ईवीएम में कैद नेताओं की किस्मत का ताला खुलेगा और ये साफ हो जाएगा कि इस बार सत्ता किसके हाथ जाएगी। देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होगा, ये कल यानी 4 जून को तय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के सबसे आखिरी पड़ाव में कल मतगणना होगी, जिसकी तैयारी हर पार्टी कर रही है। बीजेपी ने भी इसे लेकर अपनी विशेष तैयारी कर रखी है। 4 जून को मतगणना के लिए बीजेपी ने बूथ इंचार्ज और काउंटिंग एजेंट को खास दिशा निर्देश दिए हैं। हर बूथ पर मौजूदगी सुनिश्चित करने की खास रणनीति बनाई गई है। मतगणना के लिए बीजेपी की तैयारी, बूथ एजेंट, बूथ इंचार्ज, काउंटिंग एजेंट को निर्देश दिए गए। ईवीएम पर खास तौर से नजर रखने को कहा गया है। 7 चरणों के चुनाव में बीजेपी की रणनीति विपक्ष के मुकाबले जबरदस्त नजर आई।
अब मतगणना के दिन भी बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। ईवीएम की सुरक्षा का मुद्दा सभी पार्टियों के लिए बेहद अहम है। ऐसे में बीजेपी ने भी इसके लिए खास तैयारी की है। मतगणना केंद्रों पर ईवीएम की सील चेक करने को कहा गया है। अगर ईवीएम का सील ठीक नहीं है या छेड़छाड़ का आभास होता है तो ऐसे में ईवीएम को लेकर आपत्ति दर्ज कराने को कहा गया है। हर ईवीएम के बीच एक सफेद कागज होता है। किसी सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, 2 दशकों का बेमिसाल अनुभव और देश के हर सूबे तक बेजोड़ पहुंच। इलेक्शन रिजल्ट मतलब न्यूज़ 18 राजस्थान 4 जून सुबह 6 बजे से लगातार। इस न्यूज के सह प्रायोजक पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात। कावेरी इजी फास्ट है काल का पहला चुनाव बताया, नए सपने देखने की जरूरत पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के नेहामा इलाके में आतंकियों से मुठभेड़, सुरक्षा बल ने लश्कर के टॉप कमांडर रियाज अहमद समेत 2 आतंकियों को घेरा। सुरक्षा बल ने आतंकियों के इस्तेमाल वाला घर उड़ाया। झालावाड़ के बारातियों से भरी ट्रॉली हादसे का शिकार। एमपी के राजगढ़ ट्रॉली पलटने से 13 लोगों की मौत, 15 से ज्यादा घायल। भीषण गर्मी में महंगाई की डबल मार, अमूल के बाद अब मदर डेयरी ने भी दिया झटका, 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए दाम। दो 2024 का दंगल, किसका होगा मंगल, किसकी बनेगी सरकार, बस एक दिन का इंतजार। 4 जून को सबसे तेज नतीजे देखिए न्यूज़ 18 राजस्थान पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति फ्रेश एक्टिव जेल। एक्स्ट्रा फ्रेशनेस का यह है नया नाम। महारो राजस्थान का वक्त हुआ। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ सीधा रुख करते हैं। मतगणना से पहले चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। आइए मतगणना से पहले क्या कुछ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा जा रहा है, सुनते हैं। कहीं हुए क्या, कहीं होर्डिंग्स हुई क्या, कहीं 10 बजे के बाद शोर हुआ क्या, रैलीज में डिस्टर्बेंस हुई क्या, नहीं हुई। इट वॉज सच ए पीसफुल एंड वी थैंक एवरीबडी फॉर दिस। एंड देयर वाज अनदर पैराडाइम शिफ्ट दिस टाइम विच वी इंट्रोड्यूस्ड, विच अगेन वाज नॉट नोन। पहले होता था एमसीसी में सारे डेवलपमेंट वर्क्स बंद हो जाते थे, तो प्रिंसिपल क्या था, वॉट एवर कैन वेट शेल वेट। दिस वॉज द प्रिंसिपल, छोड़ दो, बंद कर दो। हमने क्या प्रिंसिपल इस बार अपनाया, 48 आवर्स में वॉट एवर कैन वर्क शेल वर्क। जितनी स्टेट गवर्नमेंट्स की प्रोजेक्ट्स की और अदरवाइज भी परमिशन हमसे मांगेंगे, सबको हमने 48 आवर्स में दिया। ऑलमोस्ट 95-98% वी हैव क्लियर्ड बाय द रेस्ट्रिक्शन, कि डर इतना होना चाहिए बस कि उसका पॉलिटिकल फायदा ना लें, और किसी ने नहीं लिया। काम चलते रहे सारे के सारे। फ्रेंड्स, एक ऐसी टोन इस बार सेट की गई जिसमें मैं बहुत जल्दी से, वैसे तो सब हमारी उसमें है ये, आपको याद होगा बिल्कुल शुरू होते ही जैसे इलेक्शन शुरू हुआ था, 6 चीफ मिनिस्टर्स ऑफिसेज से अफसर्स को हटाया गया। गुजरात, यूपी, बिहार, झारखंड, हिमाचल, यूके। दिस सेट ए नैरेटिव कि हम सीएम ऑफिसेज को भी, और उन स्टेट्स विदाउट एनी बायस, हम ये करने के लिए तैयार हैं कि वो डीएम्स पर, एसपीज पर कहीं से कहीं तक कोई इन्फ्लुएंस नहीं करेंगे। पॉलिटिकल लीडर्स के जितने रिलेटिव्स थे वो सब हटाए गए। विकसित भारत मैसेज को रोका गया। एनोनिमस होर्डिंग्स के बारे में बात हुई, हमने हटाई भी और पॉलिसी भी बनाई ऑल इंडिया, जो कि पहले से नहीं थी, कि किसी भी होर्डिंग में अगर नीचे नाम नहीं लिखा होगा एनोनिमस, ऑल ओवर द कंट्री नॉट अलाउड। एंड दिस हैज बिकम ए परमानेंट थिंग नाउ, नॉट ओनली ड्यूरिंग इलेक्शंस, दिस हैज बिकम ऑल्सो परहैप्स ऑलवेज। एथिकल यूज ऑफ सोशल मीडिया, इसकी गाइडलाइंस दे विल ऑल्सो रिमेन विद एवरीबडी नाउ। गाइडलाइंस ऑन डाटा कलेक्शन, बेनिफिशियरीज को प्रोस्पेक्टिव तरीके से प्रो बोनो के नाम पे आप, हम जीतेंगे तो आपको ये देंगे, इसको रोका गया, कहीं नहीं हुआ उसके बाद, 1-2 जगह के बाद। Constitutional authorities, ministers, you know whom I am referring, I don't want to name, everybody was stopped. Take down of controversial tweets, you are all aware of what happened. Friends, अगर इसकी लेयरिंग को मैं दिखाऊं आपको, जो कि टेक ने क्या किया, नेक्स्ट,
4.56 लाख वायलेशंस के केसेस हमें सी विजिल पर मिले। और ये कौन केसेस हैं? पोस्टर्स बैनर्स नहीं लगने